Hello everyone, welcome to a class of 11th account. Our topic is BRS Bank Reconciliation Statement. Today we are going to solve question number 8 with question and answer. Previous video we can check from this I button, and in description there are all question number 1 to 7. All videos are there with the introduction. Please check all the video in sequence in order to know the topic very well. So without delay we will start our question number 8. So here the question number 8 with this working note we will do later on. So first read the question. Question number 8 says that on Jan 18, the passbook of Mr. Girish Kumbhar showed a bank balance of 14,000. That means this is sum of balance for passbook 14,000. Nothing is specified. That means a normal balance. That is why it is called as favorable balance. That means passbook credit balance 14,000. A comparison of cash book with the passbook revealed the following information. So we are preparing BRS bank reconciliation. That means there will be a difference between passbook and cash book. That is why we are preparing bank reconciliation statement. So what is the difference? We have to rectify it and we have to prepare a bank reconciliation statement. So we will start with the transaction 1. Now the opening balance or starting balance of passbook is 14,000. So balance for passbook we have to use a sign over here in this working note. Add less, add whatever. For this sign I had already given a table. So please by heart this table. So whatever the question says that if this question says that it is a balance as per passbook. That means it's a favorable balance. So we have to use a sign plus minus plus minus. So we will put a sign over here, plus minus, plus minus. That means add less. So this sign will show that this much entry will be appear in add or this much entry will appear in less, like that. So this sign is very important, student. So we had put the sign. So we will read the transaction now. The first transaction says that a check deposited but not credited by bank. We had deposited the check into the bank. That means the first information comes through the cash book. And they are saying that it is not credited by bank. That means it is not deposited into bank. हमें कैश बुक में पैसा मिल चुका है, चेक डिपॉजिट, यानी हमें पैसा मिल चुका है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो चुकी है 10,000 की. नाउ दे आर सेइंग दैट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. अच्छी बात है, ये रीज़न है, इसीलिए हम रिकंसील कर रहे हैं. क्योंकि रिकंसील कब होता है? कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करता. एक एंट्री यहाँ है तो सेम एंट्री आपको पासबुक में भी डिपॉजिट साइड अपोजिट साइड होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है, इसीलिए हम रिकंसिलेशन बना रहे. तो आपको सिंपल चीज़ ये करनी कि ट्रांजेक्शन पड़े, जहाँ इफेक्ट हो वहाँ पास कर दे. बाकी का ये एडलेस साइन अपने आप आंसर आपको निकाल के देगा. So second transaction says that dividend share collected by bank not recorded in cash book. अभी ये डिविडेंड शेयर कलेक्ट किया बैंक ने, हमने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया था, तो उस शेयर का पैसा आपको मिल रहा. शेयर जो कंपनी है वो कंपनी आपको शेयर का डिविडेंड दे रही है, ब्याज दे रही है एक तरह का. तो कंपनी डिविडेंड देती है तो डायरेक्टली आपके बैंक में डिपॉजिट होता है. तो वो हो रहा है यहाँ पे, मगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, यानी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, पासबुक में. कहाँ हो रही है बच्चों? डिविडेंड कलेक्ट, यानी बैंक पासबुक में बैंक कलेक्ट कर रहा है पैसा, यानी आपके अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट हो रहा है. तो वी हैव टू राइट ऑन द डिपॉजिट साइड. देन थर्ड एंट्री सेज दैट बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ ECS ऑफ 500. नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास इन द कैश बुक. हमने बैंक को एक ऑर्डर दिया. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब हमने बैंक को ऑर्डर दिया है कि भाई मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम, और भी कुछ हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, हाउसिंग लोन हो सकता है. तो हम बैंक को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर एक्सपेंस है, हर महीने का है, तो आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पेमेंट कर दो. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस. तो बैंक को हमने ऑर्डर दे दिया एक बार, तो बैंक क्या करेगी? हर महीने आपके अकाउंट से उतना पैसा विड्रॉ करेगी. क्या करेगी? विड्रॉ करेगी. ठीक है, तो ये विड्रॉ में होना चाहिए. और दूसरा चीज़ उन्होंने क्या बोला कि भाई नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास इन कैश बुक, यानी कैश बुक में एंट्री हुई नहीं. अच्छी बात है, तो आपको पासबुक में विड्रॉ से एंट्री पास करनी है आपकी 500 की. देन फोर्थ एंट्री सेज द बैंक डेबिटेड कमीशन 75. अभी देखो बैंक डेबिट यानी पासबुक, बैंक यानी पासबुक, डेबिटेड उन्होंने लोकेशन भी बता दिया, विड्रॉल साइड 75. तो इसका मतलब है कि ये एंट्री भी सिर्फ बैंक में हो रही है, कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं है, आगे लिखा ही नहीं है. तो वी हैव टू अज्यूम इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक.
फिफ्थ ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। डेबिट ऑफ 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिज नॉट अपीयर इन पासबुक ओनली। तो ये एंट्री भी सिर्फ पासबुक में और ये कैश बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पासबुक में देखो उन्होंने साइड ही बता दिया, तो आपका हेडेक नहीं है। डेबिट इन पासबुक, ओनली इन पासबुक ना, और डेबिट बोला है, डेबिट यानी विड्रॉवल, तो डायरेक्टली आपको आंसर दे दिया कि भाई साइड बता दिया उसने। हाँ, अगर पहले कुछ नहीं बोला तो आपको एंट्री पास करनी पड़ती है, मगर डायरेक्टली आंसर दिया। बेसिकली आप बीआरएस का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नॉर्मली आपको सब रेडीमेड ही चीज़ ही है, आपको खाली उसको समझना है आपको। तो यहाँ पे उन्होंने डेबिट वर्ड यूज़ किया था, पासबुक ओनली, तो पासबुक डेबिट, तो आप भी डेबिट कर दो। तो सिक्स ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। चेक ऑफ 1,500 डिपॉजिट बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। आपने चेक 1,500 का बैंक में डिपॉजिट किया, यानी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो हमें मिली, चेक हमें मिलता है पैसे, तो चेक मिलने के बाद हम जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अच्छी बात है। तो 1,500 यहाँ पे भी आ रहा है, 1,500 यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों साइड आ रहा है। गलती क्या हुई यहाँ पे बच्चों, रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, यानी कैश बुक रिसीव साइड में आप लिखते टाइम 2 बार 1,500 लिख दिए, ठीक है। तो 1,500 ये नॉर्मल एंट्री हुई थी आपकी, मगर आपने गलती से कैश बुक में दोबारा 1,500 लिख दिए, 2 बार लिख दिए। तो अब यहाँ पे देखो फिगर आ गया आपका, तो क्या करना है, सिंपल रूल है माइनस प्लस का, प्लस 1,500 माइनस 1,500, यानी दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा ये 1,500, यानी ये 1,500 आपको ऐड में लिखना है, ठीक है। 7 बोलता है टोटल चेक ऑफ 20,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 18, बट चेक ऑफ 8,000 ओनली वे प्रेजेंट फॉर पेमेंट जॉन 18। महीना जनवरी है तो जो भी चीज़ हुई जनवरी की होगी, ठीक है। आपने 20,000 का चेक इशूड किया, यानी आपने पेमेंट किया, तो आपका इंफॉर्मेशन 20,000 है, आप चेक दे रहे हो, XYZ मैनी चेक बोला है, टोटल चेक बोला है यहाँ पे, तो यानी बहुत सारे चेक होंगे। तो आपने XYZ पार्टी को चेक इशूड कर दिया, यानी आपने अपना इंफॉर्मेशन क्लियर है कि भाई मेरे पास से पैसा चले ही गया, तो हमने क्रेडिट में पास करना है। और चेक पेमेंट कर रहे हैं, यानी आपके अकाउंट से क्या होगा, विड्रॉ होगा, ठीक है, क्योंकि पेमेंट का रिलेशन विड्रॉ के साथ है। मगर बच्चों बट अ चेक ऑफ 8,000 ओनली वे प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जैन, यानी आपके अकाउंट से विड्रॉ सिर्फ 8,000 रुपया हो रहा है। हमने इशूड किया 20,000 रुपया, मगर हमारे अकाउंट से जो अभी प्रेजेंटेड यानी विड्रॉ हो चुका है 8,000 ही विड्रॉ हुआ है। तो ये डिफरेंस हुआ है कैश बुक और पासबुक का, ठीक है। तो डिफरेंस लिख दो, फिर बाकी साइन पे छोड़ दो। साइन बताया था मैंने, एक ही ट्रांजेक्शन में 2 अमाउंट है तो साइन यूज़ करें आप। तो 20,000 का साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस है, तो 20,000 माइनस, और 8,000 का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। आंसर कितना आएगा बच्चों, 12,000। 12,000 जो आंसर आएगा उसकी हमको पोस्टिंग करनी है। अब 12,000 का साइन क्या है, तो जो बड़ा अमाउंट है उसी का साइन लगेगा, ये माइनस है तो यहाँ पे भी आपको लिखना है माइनस 12,000। तो ये माइनस 12,000 यानी माइनस की हेडिंग में आपको लिखना है यहाँ पे 12,000, और अब ये दोनों भाई साहब को कर दो आप कैंसल, यानी जो कैंसिल है उसकी एंट्री नहीं आएगी, बाकी सारी एंट्री आएंगी। तो ऐड में आ गया 1 2 3 4, और लेस में आ गया 1 और 2, तो लेस में 2 एंट्री है और ऐड में 4 एंट्री है। सिंपल है, वर्किंग नोट बन गया। तो अब सोल्यूशन फटाफट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से आएगा, इन द बुक्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 जैन 18। वर्किंग नोट अभी हमने जो बनाया वो सोल्यूशन हमेशा आपका ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग था पासबुक का, तो पासबुक बैलेंस पर पासबुक 14,000। ओपनिंग लिखने के बाद अब ये 1 से लेके 7 एंट्री पास करनी है, कुछ एंट्री ऐड में आएगी और कुछ एंट्री लेस में आएगी। हमें ये वर्किंग नोट बताएगा कि भाई कौन ऐड में और कौन लेस में। तो सबसे पहले ऐड लिखा है तो ऐड से शुरू करें भाई, 10,000 ऐड में आ रहा है। 10,000 नंबर 1 वाली एंट्री आपकी ये, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ट्रांजेक्शन समझे आप, नहीं समझ में आ रहा एज इट इज पूरा कॉपी कर दे ट्रांजेक्शन। यहाँ पे लिखा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड है, क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा लिखते हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। लिखने के अलग अलग तरीके में ना, पर्टिकुलर आप कुछ भी लिखो मगर रीजन सही होना चाहिए आपका। एनी हाउ 10,000 इनर कॉलम में आ गया। फिर अगला ऐड आता है हमारा 500 का, नंबर 3 यानी ये ट्रांजेक्शन कॉपी करना है आपको। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक 500, ठीक है। अगला ऐड आता है आपका 75 नंबर
नंबर 4 यानी ये वाला ट्रांजेक्शन यूज करना है, बैंक डेबिटेड कमीशन 75, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 75। ठीक है, एक चीज और है बच्चों, देखो ये नंबर है 1 2 3 4, ये नंबर आपको ट्रांजेक्शन बताता है कि भाई ये ट्रांजेक्शन आपको लिखना है, और यहाँ के नंबर ये नॉर्मल नंबर है 1 2 3, ये सीक्वेंस में आते जाएंगे, जैसे जैसे एंट्री आएगी 1 2 3 4 5 6, ये इसका सीक्वेंस है। तो ये कंफ्यूज मत होना बच्चों कि ये नंबर सेम है, ये नंबर आपको ट्रांजेक्शन बताएगा कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन लिखना है, और ये जो यहाँ सोल्यूशन में आप नंबर लिख रहे हैं ये नॉर्मल ऑर्डर वाला नंबर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चों लोग ने कमेंट किया कि ये नंबर मिसमैच हो रहे हैं, नंबर मिसमैच नहीं हो रहे, ये जो नंबर यहाँ वर्किंग नोट में लिखा गया है फॉर द योर ट्रांजेक्शन, आप कौन सा ट्रांजेक्शन अप्लाई करोगे, और जब आप सोल्यूशन में लिखते हो तो वो नॉर्मल ऑर्डर वाइज में लिखते हो, जैसे जैसे एंट्री आएगी आप वैसा वैसा नंबर डालोगे। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। एनीहाउ 75 हो गया। अगला ऐड आता, क्योंकि हम ऐड और लेस के साइन के हिसाब से एंट्री पास करते हैं, तो ऐड वाले पहले कर रहे हैं तो सारे ऐड करेंगे, तो अभी 900 आएगा। अब 900 का ट्रांजेक्शन नंबर 5 रहेगा, यानी आप ये ट्रांजेक्शन यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ 5 है, मगर अब ये ऑर्डर में नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 लिखेंगे, मगर ट्रांजेक्शन नंबर 5 ये वाला आपको कॉपी करना है। तो चेक डिजॉन ओनली रिकॉर्डेड इन पासबुक 900। देन योर नेक्स्ट ऐड कम्स टू 1500, नंबर 6 यानी ये वाला ट्रांजेक्शन आपको कॉपी करना है। तो नंबर 6 है, मगर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर 5 ही लिखेंगे, ऑर्डर में लिख रहे हैं हम लोग, तो नंबर 5 लिखेंगे। चेक ऑफ डिपॉजिट टू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, या चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। यानी आपने ऐड साइड पूरा अभी खत्म कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये वाला 5। ठीक है, तो टोटल हमारे 5 हो गए। अब सबको प्लस करके बाहर लगते हैं, 10,000, 11,000, 12,000, 12,975। सो दिस इज योर टोटल ऑफ ऐड। तो जब आप टोटल करके बाहर लिखोगे, अब इसका साइन डालोगे प्लस या माइनस, ये हेडिंग बताएगा, ये ऐड है, तो आप यहाँ पे साइन डालोगे प्लस का, और किससे प्लस करना है आपको, 14,000 से प्लस करना है, तो इट कम्स टू 26,975। सो हमारे सम का आधा पार्ट हुआ। अब अगला पार्ट है हमारा लेस का, तो लेस के लिए भी वर्किंग नोट में ही जाएंगे। सबसे पहले लेस है 1000, नंबर 2 वाला ट्रांजेक्शन, यानी ये वाला कॉपी करना है हमें। डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1000। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमने नंबर 1 लिखा, क्योंकि अब लेस में ये पहली एंट्री है, तो नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, और ये नंबर 2 यानी आपको ट्रांजेक्शन बता रहा है कि भाई ये ट्रांजेक्शन आप लिखें। ठीक है, फिर अगला लेस आता है डायरेक्टली 12,000 नंबर 7वां, यानी ये वाला ट्रांजेक्शन आपको कॉपी करना है। तो नंबर 7वां, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,000। तो लेस में तो खाली 2 ही एंट्री थी बच्चों, 1,000, 12,000, तो हमारी 2 एंट्री पे आप सम खत्म करते हैं। तो अब ये लेस वाले जो भी हैं सबको टोटल करके बाहर करेंगे, इट कम्स टू 13,000। नाउ पुट द साइन, ये लेस है तो अब लेस का साइन डालते हैं 13,000 के आगे। किससे लेस करना है, 26,975 से, और आपका आंसर आएगा, अभी हमने क्वेश्चन शुरू किया था बैलेंस पर पासबुक, तो आंसर आएगा बैलेंस पर कैश बुक 13,975। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। होप से यहाँ तो कोई डाउट ना हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।